Hello, everyone. Thank you so much for joining in. There were a lot of people who were waiting for joining this particular session. Uh, as you all know, today's session is about one of the most important topics of today's time. A lot of people were really, really excited to listen to the insightful conversation that we are about to begin in the next few minutes. Uh, Basically, you must have observed that there is a lot going on the social media after the Bollywood star Sushant Singh's suicide. And on one hand, when there is a lot of blame games going on in the Bollywood industry, a lot of psychologists, psychotherapists appeared on the mainstream social media to talk about depression and its coping mechanism. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि there was a campaign run by a lot of youth that termed as talk to me campaign, जिसमें हर बंदा ये जो है वो लिख रहा था कि talk to me if you are feeling depressed, talk to me and don't feel important to offer help, to offer voluntarily help to people who know you and to whom you are connected with. But it's try to understand that depression is the last stage cancer of your emotional health state, right? So I'm again repeating it. Depression is the last stage cancer of our emotional health and state, right? So you in that state you are not actually comfortable talking to anyone. आपके जो trusted भी होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि यार ये बात उनसे शेयर ना हो, या अगर आप करते भी हैं तो नॉर्मली लोग जो है वो आपको अवॉइड करते हैं. And that's actually a very sad state we are into. But जिस मौजू पे बात होनी चाहिए, that's basically the trigger or the root cause of our mental health or our emotions. वो है basically आपकी emotional stability, how you manage your emotions, how you program your mind to react to certain issues and certain situations. Uh, Depression, although we are a lot of us are saying कि अब depression जो है उसका rate बढ़ता जा रहा है, but understand that lot of us, many of us I would say, are not in depression at all. और हम अपनी sadness को, हम अपनी जो है वो वक्ती एक जो हम जो sadness में आ जाते हैं उसको लेके we try and consider that as a depression. No, the majority of us are not having depression, but majority of us are facing challenges when it comes to dealing with emotions or especially when it comes between our relations. So that's why our today's topic is really important because आज हम depression के हवाले से बात नहीं करने जा रहे, आज हम coping mechanism के हवाले से बात नहीं करेंगे. We will be talking about how you can manage and maintain your emotions and deal with your emotions in order to cope up with yourself internally so that you manage yourself with the external world effectively and efficiently. So आज के speaker, as you all know, हमारे साथ मौजूद हैं फरहाद करम अली. फरहाद का मैं मेरे पास एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन फरहाद ने खुद भी शेयर किया, उनके लिंक्डइन पे भी था और हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ सेशन जो उन्होंने पास में किए उससे भी बहुत सारे इंट्रोडक्शन मुझे मिले. बट उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा देना मेरे लिए ऐसा ही होगा कि एक बंदे को मैं अरसे से जानता हूँ और उसको मैं जो है वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस इस तरह करवा रहा हूँ कि मैं उसको फर्स्ट टाइम जो है वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ. Farad is an inspiration to me, to many of you who are listening to us right now, and I'm sure that कहीं ना कहीं आपने इनकी conversation से, इनकी presentation से, इनकी public speaking forum से बहुत सारे lessons, बहुत सारे inspirational lessons अपनी life में लिए होंगे. Farad has been inspiring many lives for more than 2 decades now, so a lot of experience at hand. Apart from that, he जो मुझे इनकी बात अच्छी लगती है that he is an agile individual who always look for opportunity and positivity in almost all the situation. ये चीज़ मैं हमेशा इनसे पूछता भी रहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनको मोटिवेटेड रखती है, because ultimately
एक मेरी इंस्पिरेशन ये होती है कि आई वांट टू बी समवन लाइक फरहाद के जो जो पॉजिटिव रहे, उनकी जो पॉजिटिविटी है दैट एक्चुअली यू नो अट्रैक्ट्स मी. He is a mentor and a guide to me and many of us. He is the one who really taught me what mentorship is. मैंने एक दफा इनसे कहा था कि can you be my mentor, and he said it's not something that I can give it to you. You have to seek for it. So it's like a Rumi or Shams Tabriz की जो story है in 40 Years of Love. You have to be like that, and I really got that कि हाँ एक mentor के practically ज़रूरी होता है that he goes out to the mentor whenever he require help. अच्छा, and then इसका इनके बारे में जो मैं क्यों आज इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मैंने फरहाद को चूज किया, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ही इज इन कंपैशन बिजनेस for almost a decade now. He's been talking about compassion and empathy. It's not new for him. He's an advocate of compassion in business for almost a decade now. And why in business? Because the work that we do, जो हम अपने professional life में कामों पे जाते हैं, that's basically the time that we give to our organizations. वो हमारे precious hours होते हैं जिसमें हम most active होते हैं. तो अगर आपके बिजनेसेस कंपैशनेट नहीं होंगे, आपकी जो डेली लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं उसमें कंपैशन नहीं होगा, सो अल्टीमेटली आपकी पर्सनल लाइफ उससे इम्पैक्ट होगी. दैट्स व्हाई कंपैशन इन बिजनेस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आई कंसीडर हिम एज द बादशाह ऑफ ट्रेनिंग, fraternity, and the sultan of consulting, and a firm believer of servant leadership model where he practiced humility, compassion, and passion for what he does. So, without wasting further time, I know most of you want to see him on screen. So here you go with Farhad Karamwali himself. Thank you so much, Farhad, for being on the segment. This is the new segment that I've introduced on my channel in Conversation With, and this is my first, conversation, and that too with my mentor himself. यार थैंक यू वेरी मच. आई जस्ट लव द इंट्रोडक्शन. कितना मजा आ रहा है यार, कितनी अच्छा. ओह क्या बात है. अच्छा ये भी है यार. अरे हाँ, ये पहली मीटिंग यहाँ पे हुई थी. इट वाज जस्ट अमेजिंग. जनरली पीपल रीड आउट, जिसको मैं कहता हूँ माय शो ऑफ प्रोफाइल, so they're busy reading it. हाँ सर ये हो गया, अच्छा फिर ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया. But thank you very much for the lovely introduction. I was enjoying it so much. Needless to say, I was also getting a little embarrassed. जो सुन रहे होंगे ये है क्या मसला क्या है, कौन है, अब चलो बात कर लेते हैं. How people think, yeah. But thank you very much. It's wonderful being with you over here, and I'm glad we made it happen. That's so kind of you that you have given me time for this. And as I said, a lot of psychotherapists, psychologists, and those who have little to no expertise at all, they are generally talking about the mental health and all these stuff. So मैंने कहा क्यों नहीं हम उनसे बात करें जो वाकई ही compassion के बारे में काफी सालों से बात कर रहे हैं. It has to be trickled down to a lot of people who are living in our society. So Farhad, I think let's start off with our very basic question. Okay, definitely हर बंदा सुनना चाहता है. As you said, conventional जो stuff है, थोड़ा सा पहले उससे start करते हैं. Definitely we go on to the unconventional stuff. So, in your opinion, what is the definition of emotional intelligence? Although मेरे पास जो है वो जब मैं Google करता हूँ तो बड़ी easy सी definition आती है कि recognize, understand, and manage your own emotions and then influence the emotions of others. So ये तो एक bookish definition है that we generally go through. What is your definition जो कि practical हो, जो कि समझने में आसान हो for the general public? Emotional intelligence है क्या? सही आपने कहा, समझने में आसान हो और फन भी होगा obviously because it just can't be boring. Let me take you through a little exercise. And those of us who are listening from home, my request is, or even otherwise if you're seeing this video, my request is just play along with me and do the things that we are doing in terms of exercising. बीच में हाँ ना वाले सवाल भी करूँगा, जरूर देख लीजिएगा. एक चीज कंफर्म है, एक सवाल जो आया ना, क्योंकि मुझे एक दो मुझे यार ये इमोशनल इंटेलिजेंस से तुम क्या कर रहे हो. You see what many people don't realize it, वो होता है ना, आप करते हो चीज, आप इवॉल्व करके आप आगे निकल जाते हो. आई रिमेंबर इमोशनल इंटेलिजेंस का मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था वे बैक इन एज द टाइटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, वे बैक इन द ईयर 2000 था 2001 के बीच में. दैट्स व्हेन आई फर्स्ट डिड.
एंड उसके लेके अब तक अगर देखूं, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट हैज जस्ट इनरिच्ड, येट द बेसिक्स आर जस्ट सो सिंपल. द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ ऑल ऑफ दिस थिंग कम्स टुगेदर. तो अक्सर लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं अपने पर्सनल लर्निंग के लिए क्या करता हूँ. तो मैं कहता हूँ मैं अपने पर्सनल लर्निंग के लिए ये करता हूँ, सिखाने के लिए मैं दूसरी चीज करता हूँ. तो क्योंकि मैं सीखता हूँ और जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, लेकिन सिखाता अलग हूँ. बिजनेस है, स्ट्रैटेजी है, कंसल्टिंग है, बिजनेस मॉडल्स हैं. कोई कहता है कि मेरा नया आइडिया है. क्या आइडिया, क्यों करना चाहते हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो सबको. बट बेसिकली द टूल्स दैट वी आर यूजिंग इज इमोशनल इंटेलिजेंस. Your first question, what is emotional intelligence? आसान अल्फाजों में. Although I think Google and you have lots of resources, I think they very beautifully describe what emotional intelligence is. मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ. एक बात बताओ जरा, ये दो लोग सुन भी रहे हैं, आपको दानिश चुटकी बजाना आता है? अच्छा ठीक है, काम करो जरा, ये कोई अगर मैं आपसे कह दूं 10 चुटकियां बजाओ, जो लोग सुन भी रहे हैं 10 चुटकियां बजाएं, 10 चुटकियां बजाएं. अच्छा, आपने एक बात बताया, आपने चुटकी के बाद रुक के फिर 2 साथ में, फिर 1, फिर अलग, इस तरह क्यों नहीं, आप क्यों इस तरह कर रहे थे? Probably in the interest of time, as well as we are habitual of doing things quickly. कि जैसे ही बोला आपने फौरन करना कर लिया. अच्छा, जब ये कर रहे थे 10 जब किए और जो लोग सुनेंगे, उसमें कोई रिदम बन गई थी आपके अंदर? डिड इट फॉर्म अ रिदम इन योर माइंड? यस. फिर चाहे हाथ का रिदम हो या ये जो आपने किया था ना, साउंड जनरेट हो रहा है, एक रिदम बन गया था ना आपका. ऑल्दो आई डिड नॉट आस्क यू टू पिक ऑन द रिदम. दिस इज योर म्यूजिकल इंटेलिजेंस. एज एन एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान करके बता रहा हूँ, ठीक है. अब किसी ने साइंस खोलनी है, लंबी चौड़ी हो जाएगी, अलग बात हो जाएगी. किस तरीके से अब आपने एक करके छोड़ा नहीं, यानी यू एंजॉय कर रहे हो, आपका हाथ भी ये मूवमेंट भी जो है, ये भी जो है एक पैटर्न पकड़ लिया. ये पैटर्न जरूरी नहीं कि आपने सीखा, बट माय गेस इज दैट आपको रिदम समझना आता है. यू कैन अंडरस्टैंड, यू गेट अ फील ऑफ रिदम. अगर आपको टेबल पे भी बोला टेबल है तो आप कुछ ना कुछ बजा लोगे, कुछ हद तक थोड़ा सा टक 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 ऐसे कुछ ना कुछ कर लोगे without really studying. That means there is already an element of music inside you, and you have the intelligence without somebody teaching you to actually connect with that. And ये भी देखना, माहौल देख के भी किस तरह का म्यूजिक लगाना चाहिए, ये भी आपको पता होगा कि कब स्लो म्यूजिक लगानी है, कब फास्ट म्यूजिक लगानी है. Am I right in assuming this? Because this is only because of the way I saw you move this. तो अब हुआ क्या, म्यूजिक आपके अंदर है कि कहीं से आई है, बचपन में, बिकॉज वॉट एवर रीजन. हार्वर्ड गार्डनर का है मल्टीपल इंटेलिजेंस, फॉर सम आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है. आज जब मैंने आपसे कहा, आपने जिस तरीके से किया, यू इंटेलिजेंटली इनकॉर्पोरेट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट. जब आप इसको शऊरी तौर पे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियसली यू मेक एन एफर्ट, बिकम म्यूजिकल इंटेलिजेंस. कमिंग टू इमोशन इंटेलिजेंस, इमोशंस आर इनसाइड यू एंड मी. वी ऑल हैव इमोशंस. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू ब्रिंग इट आउट. तो म्यूजिक आपके अंदर थी, ये हमारा तरीका था बाहर निकालने का. इमोशंस हमारे अंदर हैं, उसको बाहर निकालने का तरीका वो उस समय पता चल, which is again tying in with the definition as all of us have heard, knowing your emotions and the other person's emotions. So knowing your emotions क्या, अपनी म्यूजिक समझो, अपना बीट समझो, और उसको समझने की सलाहियत और डेमोन्स्ट्रेट करने की, माहौल को देखते हुए आपकी इंटेलिजेंस आ जाती है कि वाकई समझ में भी आता है क्या करना है, या ऐसे ही हवाई फायर. So I hope this was different from what people have heard. Absolutely. So clear and so practical. So those of you who are listening to us, who are watching us, please feel free to ask questions, because the segment is about conversation. So इसमें हमें आपसे questions end में नहीं चाहिए. We want you to ask relevant questions from the speaker right away, and we can take that up as all right. So moving on to the importance of emotional intelligence. You have been advocating this compassion, empathy, emotional intelligence, and emotionally managing yourself. NLP का भी आपका काफी hands-on experience है. So how do you take the EQ in general, and what's the importance in our lives? क्या इसकी importance आपको नजर आती है, whether it be our personal lives or professional lives? देखिए, इमोशंस जो हैं, अभी अगेन एज आई सेड, एवरीबॉडी हैज देयर ओन वेज ऑफ थिंकिंग एंड बहुत डाइवर्स है. आई रियली लाइक द वे मैल्कम ग्लैडवेल एक्सप्लेन्ड इट. वो जो 5 उसके जो एरियाज हैं ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. आई थिंक आई लव दैट मॉडल. उसके अलावा भी आप जितने भी ऑथर्स और लोगों को सुनेंगे, चीजें करेंगे, घूम फिर के आपको नजर आएगा ये है द इमोशनल इंटेलिजेंस.
negotiation skills से लेकर influencing से लेकर communication, everything is actually this. Emotional intelligence की अहमियत, it is like you have wild energy, fully energy अगर आपके पास पड़ी हो और उसको इस्तेमाल ना करें आप, तो आप खुद बताएं आपका क्या नुकसान होगा. एंड ह्यूमन बीइंग्स आर फिल्ड विद इमोशंस ऑल द टाइम. बल्कि जब बात करना नहीं सीखे थे, चीजों की समझ नहीं थी, उस वक्त भी जज्बात थे. वो पैदा होने के बाद जो फेंटियां पड़ी थी, उसके बाद जो रोना आया, वो भी इमोशन ही था. भूख लगने की वजह से जो फीलिंग पैदा होती है, that is also emotion. So technically before we started doing anything, we already had the feelings. Emotional intelligence is actually understanding those feelings. क्योंकि जो अंदर नहीं करता वो क्या कहेगा, हमेशा बाहर वालों पे इल्जाम डालेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कसूर नहीं है, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ. बजाय इसके कि ये देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस का मैं पहला स्टेप लूँ, without really thinking, reflecting, what do I have inside, am I using my assets appropriately. बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, वो नाम याद नहीं आ रहा, उसमें एसेट बेस्ड थिंकिंग. वो एसेट बेस्ड थिंकिंग क्या है, वो यही बात है, घुमा फिरा के लगेगा यही बातें कर रहा होता है. मकसद मजाक में कहना, कंसल्टेंट ने भी तो कमाना होता है ना, तो घुमा फिरा के वो एसेट बेस्ड थिंकिंग. व्हाट इज एसेट? एसेट इज व्हाट इज इनसाइड यू, उसको किस तरीके से यूज करते हो. क्योंकि अगर दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि आप बस में खड़े हुए हैं और एक और शख्स भी जो है वो खड़ा हुआ है, कुर्सी खाली होती है, व्हाट वुड यू डू? खुद बैठोगे, उसको बैठने दोगे? पर्सन लाइक मी विल सी कि उसकी एज क्या है. अगर वो एल्डर है तो आई वुड डेफिनेटली ऑफर हिम सीट. हो गया ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो गया ना. अब ये सही चीज है, इंसानी लेवल पे सही चीज है. इसलिए जब लोग कहते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के लिए क्या करना होता है, मेरा यही होता है कि यार ये मेहनत क्यों करते हो इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के लिए. ये जो गंदे गंदे इमोशंस लग गए ना, उसको जरा साफ कर दो. देखो बाय डीप डाउन तो हर बंदा है सही है वैसे, लेकिन बस वो थोड़ा सा धूल तो कहीं पे बहुत ज्यादा दम भी लग जाता है, लेकिन वो चीजें ऊपर आ जाती हैं. एंड व्हाट गिव्स यू प्रोग्रेस, आपने किसी को बैठने के लिए जगह दी, क्या पता कल को वो आपको हेल्प करे. बाकी चीजें छोड़ दें, हो सकता है कि एक बंदा जो अगला बंदा उठ के जाने वाला होगा ना, वो आपको बोलेगा कि आप आ जाओ, बैठ जाओ. तो डोंट हैव टू बी वरीड कि मेरा क्या फायदा होगा. डू थिंग्स व्हिच आर राइट. एंड बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल से कि आईक्यू जरूरी है, ईक्यू जरूरी है. ऑब्वियसली इट्स अ नो ब्रेनर, ईक्यू जरूरी है. उसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, वो समझने की बहुत जरूरत है. एंड कॉन्स्टेंट वहां पे सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक हेल्प्स द मोस्ट. गो डिस्कवर योरसेल्फ. एंड दिस इज बियॉन्ड द फेसबुक. जो गेमें होती है ना, जो मैं भी बहुत खेलता हूँ, कि ओ मैं ऐसा हूँ, क्योंकि उसमें तो मैं ट्राई अगेन का ऑप्शन भी दे देता है आजकल. नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ. So this is of course part of our questionnaire that we have. तो उसकी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में I'll definitely ask you another question जिसमें थोड़ा सा हम deep down जाएंगे. My next question to you is that कि अच्छा जो भी viewers हमें देख रहे हैं, I would like them. आ रहे हैं इसको, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे पास कोई सवाल नजर नहीं आ रहा, but I want them to ask questions and please share this video with your contacts in your social media ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक जाए. एंड दोज हु आर नॉट एबल टू सी अस catch up with us, वो भी इसको देख सकें, because lot of people are not aware कि कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है. So I think we should just share our links. but साहिब का एक सवाल आया है, वैसे साहिब का फेसबुक पे है, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा मुझे. ओके श्योर कि check it out, सकता वीडियो हो. इस वक्त इमोशनल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, पता है, मोर इंपॉर्टेंस ऑफ ईक्यू. अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी मसला है, बंद करो शो बंद करो, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है. और दूसरा होता है भाई क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी यार गेम कर गया. I think Sahib has asked on a host party, तो I think उसी वजह से वो स्ट्रीम पे नहीं आ रहा. इश्यूज हम यहाँ से ले लेते हैं because Sahib is also one of my closest contacts. So Sahib का कहना है कि please share some insights on managing others' emotion. What does this mean? Does it mean controlling or manipulating others, or is it something else, or being flexible per se? So how people, I mean, how as an individual you can manage others' emotion? कितनी देर वाला जवाब चाहिए? मैगी नूडल जवाब चाहिए या जरा डेप्थ में जाओ? I think Maggie noodle रखते हैं because people want to listen. Maggie noodle जवाब यार, दूसरों के इमोशंस कैटेगरी की जिम्मेदारी क्यों लेते हो? क्यों उनको मैनिपुलेट करना है आपने?
वो तो मुझे लगता है, मुझे एहसास हुआ है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसिंग वाला वर्ड भी जो है ना सबसे बहुत गलत है। लोग अक्सर बोलते हैं हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू, कहते ये, मैं कहता हूँ यही मसला था। द व्हाट शुड हैव इन्फ्लुएंस्ड, द हु शुड नॉट हैव इन्फ्लुएंस्ड, द हु इन्फ्लुएंसिंग यू हैज परसुएडेड यू। तो ये जो मसला है ना कि मैं दूसरों के इमोशंस को मैं मैनेज करूं, यार उसका मैनेज करना, मैं खुद अपने अपने इमोशंस कितना समझता हूँ जो मैं दूसरों को बैठ के उसके इमोशंस को बैठ के कंट्रोल करूँ। आई हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, लेकिन मजे का पता है क्या है, इफ यू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग अदर पीपल्स इमोशंस, कि आई विल मैनेज योर इमोशंस, तो वेयर इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ? उसको गाइड करना, कोच करना, चीज तरीका ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट इज नॉट द सेम। एक अलग तरीके से आप उसको इनकरेज करते हैं कि ताकि खुद को समझ में आ जाए दैट आई नीड टू बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ। दैट इज वेयर कोचिंग कम्स इन। बाकी ये जो कहते हैं मैं इसको बता तुम्हारा तरीका सही नहीं था, ये छोड़ बचाना चाहिए, ये नहीं चाहिए, यार नहीं सुनेगा वो। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज थोड़ी सी डाली, थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल, कि लैंग्वेज में मैंने बाद में चेंज कर दी थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम द यूजलेस एडवाइस आई गेट बिकॉज़ इफ आई वर इन योर प्लेस, बिकॉज़ द फैक्ट इज यू आर नॉट इन माय प्लेस। खाली कह देना इफ आई वर इज नॉट एम्पैथी। Really, if I were you, you're not in my place, you really don't understand the whole thing. आप मुझसे सवाल करो, मेरे अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करो। इमोशन इंटेलिजेंस का इसीलिए भी अगर देखिए शुरू किससे होता है, आई नो लंबा हो गया जवाब, लेकिन इमोशन इंटेलिजेंस शुरू कहाँ से होता है? सेल्फ अवेयरनेस से। जिसका मतलब ये कि पहले मैं लेबल तो करना सीखूं इमोशंस को सही। हाउ डू आई नो कि सामने वाले की इमोशन है क्या? हाउ डू आई नो व्हाट? अभी कल मैं एक ग्रुप में था, आई डोंट नो इफ यू आर इन दैट ग्रुप और नो। यार रात को कोई 12:45 कुछ लोग शुरू हो गए थे। I'm not going to name the group, and if they're listening to it, enjoy, and I'll be more than happy to talk because everybody probably is in a different state of mind right now. यार शुरू हो गए इमोशन वर्सेस एम्पैथी। इमोशन काम में होनी चाहिए, नई स्ट्रैटेजी में इमोशन नहीं होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथी आती नहीं, बिना वजह का लंबा लंबा। और मैं अपनी तरफ से ये सोच रहा हूँ, दोनों जोन में आ गए थे। अब नजर ये आ रहा था कि इट वाज, कहा कि नहीं नथिंग पर्सनल, लेकिन नजर आ गया था कि इट इज ऑल पर्सनल, क्योंकि बोथ वर एक्चुअली वेरी एडमेंट कि मैं सही, एंड बोथ वर ट्राइंग टू मैनेज द अदर पीपल्स इमोशन। अगर मैं अपना इमोशन अगर मैं उसमें होता, मैं सवाल ज्यादा करता, आपको क्यों लगता है ऐसे? जैसे आज सुबह को भी किसी ने डाला कि हम इतनी बुराइयां करते हैं हुकूमत के बारे में, तो हमें खुद को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा उसके कमेंट उसको मैं लिखा, इंडीड दिस इज ग्रेट स्पिरिट, आई लाइक द स्पिरिट कि अगर मसले हमें सही करना है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो क्या मैं कस्टमर्स को जाके शिकायत करूंगा, या मेरा कस्टमर आके मेरा बिजनेस चलाएगा, मेरा कंपटीशन आगे चलाएगा? अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहां का खाना अगर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या मैं अंदर किचन में जाके खुद खाना बनाऊंगा, या उधर मैं कंप्लेन करूंगा? या तो मैं खाना छोड़ दूंगा, अपने घर पे ही खाऊंगा, वो मैं कर सकता हूँ। So you see, oftentimes it's a very deep subject, and I'm glad, Sahib, you did bring this up, and you yourself are very well read, very well experienced. You've also been doing trainings on similar topics. आपको भी पता है, मुझे पता है, ये जो हम जो जिम्मेदारी ले लेते हैं ना कि मैंने दूसरे को ठीक करना है, will generally affect. I'm really excited to know that people are joining us from not just from Pakistan but across the globe. Of course, you have a lot of fans following in Sri Lanka, and people are watching from Australia, Melbourne as well. Subair is with us from Melbourne. Roshan Ara is from Sri Lanka. Sahib has joined us right now. Sahib will be taking your question definitely. Thanks for joining us on the main link. Humaira is my colleague as well. She's also here. Thanks, Humaira, for listening. All right. So moving on to the next question. अच्छा अभी आप बात कर रहे थे about the emotional intelligence के it's basically something that we learn. So एक Something that ये भी आता है कि EQ is something that we can learn. We can learn in our lives, right? Skill है एक. So there is a question from multiple people. जिससे मेरी बात हो रही थी EQ के हवाले से. They really wanted to understand whether EQ is an innate trait of a person or it's a skill that can be taught. In other words, can emotional intelligence be taught in classroom settings or in other settings? आई थिंक व्हाट कैन बी, जैसे शुरू में म्यूजिक वाली एग्जांपल मैंने दी थी, देखिए म्यूजिक आपके अंदर है, उसको सही बेहतर करने के लिए यस यू कैन ऑब्वियसली लर्न कि किस की से क्या क्या होता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आप सीख सकते हो, आप गिटार सीख सकते हो, आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो, और लेकिन एक स्टेज पे ऐसी आ जाती है यू मास्टर इट सो मच कि देन यू रियली डोंट वरी कि किस की पे क्या क्या लिखा हुआ है। इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। जिसको सेंस ही नहीं है म्यूजिक का,
या डेवलप नहीं हुआ है सेंस बिल्कुल म्यूजिक का, वो म्यूजिक सीखते होंगे, बट उसको तकलीफ भी होगी और अप्लाई करते हुए वो अलग अलग करेगा। जिसको सेंस है, पसंद है, पैशनेट है, वो सीखेगा और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा बड़ा नेचुरली फ्लो के अंदर होगा। इमोशंस यही चीज है, इमोशंस भी जो है वो हमारे, जो हम कहते हैं ना EQ, मुझे सीखना है, नहीं समझ ही नहीं आता। आपको जो सीखना है, आपको लैंग्वेज सीखनी है कि इन इमोशंस का मतलब है क्या। इमोशंस तो सबके अंदर है, दैट्स अ गिवन। सो यू ट्राइंग टू टेल मी कि मैं EQ सीखना चाहता हूँ यार, कभी कभार क्लाइंट की तरफ से आती है हमारे लोगों को, आप EQ सिखा दें और इनके तो एक कोर्स तैयार कर दें, EQ सिखाना है, नेगोशिएशन सिखाना है, कम्युनिकेशन सिखानी है और सेल्फ मोटिवेशन सिखाना है। मैंने कहा बेटा आपको पता है ये EQ जो आपने कहा है ना, उसके लिए सारी चीजें कवर हो जाएंगी अगर आप सही तरह EQ करेंगे। मसला ये EQ को समझा जाता है कि दूसरों के गुस्सों को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, वो लोगों की समझ ही बड़ी लिमिटेड है। वो पहले मैं सही करता था, मेरे हाथ से बिजनेस जाता था, फिर मुझे देन आई अंडरस्टूड द अदर पीपल्स इमोशन। मैंने कहा ठीक है तुझे चाहिए ना, मैं कर देता हूँ, एक मैं EQ भी कर दूंगा, एक मैं ये बताओ EQ में चाहिए क्या। मेरे तो वहां से बात दिखा, पता अच्छा आपको खास ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है कर दूंगा और बाकी टॉपिक सब बाद में ले लूंगा। तो EQ को लेकर सीखने का तरीका, इट गिव्स यू गुड लेबल्स। ऑल द रीडिंग्स दैट आई हैव डन, ऑल द आई थिंक मैंने कहा 1997 से आई एम रीडिंग ऑन इमोशन इंटेलिजेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्यू मैप्स भी हैं, इमोशन इंटेलिजेंस 2.0 इज अ वेरी गुड बुक। एसेट बेस्ड थिंकिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, आई डोंट यू पिक अप बुक्स एंड वो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो डायनेमिक कैनमन का वो, इट डजंट साउंड लाइक EQ बुक, लेकिन ये सारी चीजें आपके फीड इन करती है क्योंकि दे हेल्प यू अंडरस्टैंड। एंड अंडरस्टैंड किस तरीके से, अंडरस्टैंड क्यों होती है, क्योंकि अंदर एक चीज है, मुझे जबान वो मिल जाती है जो मेरी समझ में आती है। तो इफ आई स्पीक टू यू राइट नाउ इन अ लैंग्वेज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको मेरी गुफ्तगू समझ इसलिए आ रही है बिकॉज इसका कोई एंकर पॉइंट आपके अंदर समझ है। अब अल्फाज मिल जाते हैं कि हाँ ये तरीका सही था, नाउ यू आर लुकिंग एट माय बिहेवियर, ये सही तरीका, ये नहीं था, ये अल्फाज सही थे, ये अल्फाज सही नहीं थे, इस तरीके से हाँ ये इसका असर ये हुआ। ये देखिए, दिस इज स्पीकिंग टू द इमोशंस इनसाइड यू। तो ये जो कहते हैं इमोशन इंटेलिजेंस सीखना है, आपको लैंग्वेज सीखनी है। उस लैंग्वेज का आपको स्किल सीखना है, आपको समझ आ गया इमोशन इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेट्स से सोशल स्किल्स अगर ले लें, हाउ नेगोशिएशन, तो ये सोशल स्किल्स, किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है। अब आपकी समझ में आ गया ना कि ये जरूरी है। फिर आप पहले अपना सेल्फ अवेयर करते हैं कि मेरा लेवल क्या है, फिर आप तरीके सीखते हैं। और जब मैं कहता हूँ तरीके सीखते, आपको पता चलता है अच्छा देखो स्टैंड लाइक दिस, स्टार्ट ऑफ सेइंग दिस, क्योंकि इसका असर ये होता है सामने वाले के ऊपर। तो वो सारा टेक्निक जो स्किल्स हम सीख रहे होते हैं, एक नुमाया करके खूबसूरत बनाता है ऑफ एन इननेट टैलेंट दैट वी हैव, बट वी नीड टू बी विलिंग टू डू इट। but it can इट्स जस्ट लाइक अ ड्रिलिंग मशीन अगर आपके पास है, डजंट मीन कि आपको ड्रिल चलाना आता है। So it's basically emotions. We all have emotions. That's basically equipment that we all own. But how to use it, how to manage it in our favor, that's basically the art. That's basically the skill that we can learn. इवन फॉर एग्जाम्पल, और जब लोग कहते हैं कि जी मुझे इमोशंस मैनेज करना है, क्या करना है मैनेज करके, उनको अप्रिशिएट तो करो। ज्यादातर लोग तो अप्रिशिएट ही नहीं करते हमारे अंदर जो इमोशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल डर, किसी को क्या डर ना, डर को क्या नहीं डरना नहीं चाहिए, हिम्मत तो नहीं चाहिए, हिम्मत तो नहीं चाहिए, टॉक दे दो यार, बोलते हो डर है उसके अंदर, तो बोलोगे डर है, पहले तो मानो डर है, डर को बुलाओ, स्पीक टू योरसेल्फ, डर बताओ क्या चाहिए, डर आपको क्यों डर लग रहा है। ये नहीं कहना यार अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना मैं तो नहीं करता। 2 कौड़ी वाली डिवाइस जो मैं कहता हूँ जनरली बिगिंस विद के इफ आई वर इन योर प्लेस बिकॉज हैबिट इज नॉट इन माय प्लेस। तो होता ये कि जब आप शुरू करते हैं तो उसके अंदर आप शुरू इस तरीके से करते हैं समझने की अच्छा क्या है डर, किस चीज से है, क्या है। क्योंकि देखिए ये फीलिंग्स जो है ना, ये जिसको मैं अक्सर फीलिंग्स में जनरली ले लूं, ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह होती है, अलग अलग चीजों पे जिद कर देती है। कभी अन्ना भी तो एक इमोशन क्रिएट करता है, अन्ना इज एन आउटकम ऑफ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस। वो क्या है, बिगड़े हुए बच्चे की तरह है, सुने समझे उसको, उसके साथ बात करें, नो योरसेल्फ, नो देम एंड लेट इट गो एंड दे काम डाउन, इमोशंस काम डाउन बड़ा नेचुरली। इसकी जो बहुत ज्यादा परेशानी करते हैं तो इतना जरूरी नहीं है। नाउ दिस इज जस्ट आई सेड, दिस इज माय पॉइंट, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन पर्सन। ये क्या लिखा है राइटिंग, जो मैं बड़ा मिक्स लेके चलता हूं, मैं रीडिंग भी करता हूं, मैं किसी कहते हैं ये नहीं होता वो इससे कह दिया तो सही होगा, बिकॉज उसको मुझे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज रेलेवेंट है, कहाँ पे मॉडिफाई हो सकती है। उमर खान हैज अ क्वेश्चन। I think let's take the question. Probably अगर मेरे पास जो है वो इसी हवाले से क्वेश्चन है that I'll be How to get rid of negative emotions of the past, that is you were betrayed. ठीक है। सबसे पहले
लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये तो जिम्मेदारी वाली बात है, सेल्फ अवेयरनेस वाली बात है कि व्हाट यू फेल्ट, बिकॉज इफ यू वर बिट्रेड, नेवर माइंड, बिट्रेयल तो खाली एक एक्ट था, आपके अंदर नेगेटिव इमोशन आई, यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन होगी जो कि बाहर निकली है, जो कि सबके अंदर होती है, देयर इज नो हार्ड एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट। वो आई वाज, पहली दफा लोग ये कहते हैं ना, एक दफा किसी ने कहा कि दिस पर्सन स्टर्स द शिट अप इनसाइड मी, तो सवाल ये था कि इफ द अदर पर्सन स्टर्ड द शिट अप इनसाइड यू, तो शिट था कहाँ वैसे, बाहर वाले के अंदर नहीं डाला था, था तो अंदर ही था ना वैसे। तो नेगेटिव इमोशन अंदर ही थी आपके, और आपकी के अंदर हैं। Betrayal, non-betrayal, these are all stories. Okay. Now, this is again, for example, in a lot of counseling and coaching and therapies, for example, they will teach you the importance of stories. और बोलेंगे स्टोरी में जाओ, स्टोरी को सही करो, तरीका है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट, बट देयर इज ऑल्सो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि स्टोरी में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर स्टोरी में खुद या तो एक बंदा अपने आप को खुद ही हीरो बनाएगा या खुद ही विक्टिम बनेगा। बहुत कम होता है जो लोग इल्जाम ले लेते हैं अपने ऊपर। सो दीज आर स्टोरीज। सो बिट्रेयल है या नहीं है, it's a story. I really don't need to get into it. And I think stress manage करने के लिए, क्योंकि we're speaking of feelings and not hardcore facts, so let's park the betrayal part. Let's just understand the negative emotions, क्योंकि उसकी की वजह से ये स्ट्रेस और परेशानी और सब चीज आती है। सबसे पहले तो माने ये देखें ये स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है आपके अंदर, किस वजह से बैठा हुआ है, चाहता क्या है, उससे बात करें ना, कोई नेगेटिव इमोशन क्या चाहिए और कौन कौन सी फीलिंग्स हैं दैट डिस्क्राइब दिस नेगेटिव इमोशन। मैं कहता हूँ नेगेटिव, इसकी वजह से डर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे अकड़ आती है, इसकी हिम्मत कैसी हुई है करने की, नेगेटिव इमोशन, यार ये क्या कर दिया, यार देखो मैं कभी किसी के साथ जो है ना, मैं अच्छा किया मैंने, मेरे साथ ये हो गया, तो आप कमजोर फील कर रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज इमोशंस। नाउ देयर इज लॉट ऑफ साइट्स वेयर यू कुड गेट दोज लिस्ट ऑफ फीलिंग्स। पहले लिस्ट बनाए फीलिंग्स की, वो फीलिंग्स आपके अंदर हैं, ठीक है। पार्क द स्टोरी सेपरेट, यू हैव दोज फीलिंग्स इनसाइड यू। जरा देखें कि वो फीलिंग्स जो हैं वो रखने लायक हैं भी या नहीं है, उन फीलिंग्स को देखें रखने लायक है या नहीं है। एंड अगर आपके अंदर जवाब आता नहीं नहीं ये तो रखना जरूरी है, उससे मेरे साथ ये किया था, आपकी अन्ना है। फीलिंग्स को जाने देने में कोई मसला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बंदे को छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ फीलिंग को छोड़ दें। देखिए दोनों में फर्क है, एक है सिचुएशन को छोड़ना, एक फैक्ट को, दूसरा है फीलिंग को। व्हाट एम आई सेइंग, लेट गो ऑफ द फीलिंग एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि फीलिंग का नुकसान आपके अंदर है, टेंजिबल नजर आता है। कुछ लोगों को डिजीज का क्या मतलब है, यू ब्रेक द वर्ड डिजीज डाउन, दिस इज, यू आर नॉट एट ईज, when you're not at ease, when your feelings are not aligned, negative emotions आप फील कर रहे हो, पहले तो उसकी एसोसिएट फीलिंग सारी बाहर में देखो क्या क्या है, वो क्या मसला है बताओ, सुनो मुझे बताओ, आप अप्रिशिएट करेंगे, वो आप ही के अंदर की चीज है। एंड देन आस्क योरसेल्फ, इज इट वर्थ कीपिंग और नो, इज इट वर्थ कीपिंग द फीलिंग और नो। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द स्टोरी एंड द एक्सपीरियंस। आपने देखा है लोग डिवोर्स जो होती है लोगों की, लेट्स पुट इट दिस वे, लेट्स गो डीपर। कुछ लोग जो हैं वो डिवोर्स करते बात खत्म हो जाती है, आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग डिवोर्स के बाद भी 10 साल तक रोना धोना डाला हुआ है। तो बेटा रोना धोना आपने डाला हुआ है ना, वो तो काम तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आपने रोना धोना नहीं छोड़ा तो आप डिवोर्स से बाहर नहीं निकले। अगर आपने रोना धोना छोड़ दिया फिर तो मैरिज सिचुएशन के अंदर भी आप डिवोर्स रह सकते हो, अगर आपको नहीं करनी पाती दूसरे से, बिकॉज फीलिंग नहीं है ना। It is at the end of the day understanding that feeling, which emotional intelligence, if you go deep down and beyond the surface level as most easily available information is, तो आपको ये चीजें automatically feel हो जाएंगी। I hope I have triggered a thought process. I've ignited some feelings in you, but not the answer. I'm not willing to give you the answer, but I hope I've triggered a thought process. And that brings me to another question regarding identifying the emotions. So as you said कि emotions को tag करना, emotions को समझना कि आपके अंदर क्या क्या emotions develop हो रहे हैं over the period of time. जैसे अभी उमर ने betrayal use किया, I'm sure there will be a lot of people who have no idea about this term itself. ये होता क्या है? So how और दूसरी बात ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, whether you take Cambridge system or you take the normal हमारा जो सिंध बोर्ड है या कराची बोर्ड है, whatever, इसकी करिकुलम में there is no such soft skills there to just let you aware of these emotions only. या अगर है तो आप प्लीज उसको हाईलाइट करें कि how we are catering to this कि हमारे पास इमोशंस को टैग करने के लिए it's important to let people know about what kind of emotions are present. जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, when I first I was given an opportunity to present on stage, तो एक अजीब सी फीलिंग थी
स्कूल लाइफ के अंदर कि मुझे क्या हो रहा है। आई वाज जस्ट हैविंग सम फीलिंग्स इन माय टमी एंड स्वेटिंग हो रही है, प्रेशर हो रहा है। अब ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एंजाइटी, आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ कि एंजाइटी कोई वर्ड है, एग्जिस्ट करता है, और ये इसकी इसकी जो सिम्टम्स हैं या इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है। सो हाउ स्टूडेंट, हाउ अ यूथ, क्योंकि मैं तो देखिए प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद यू गेट अ लॉट ऑफ डाउट्स, ठीक है ना, आपको सब पता चलते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, यू बिकम मोर प्रोफेशनल, तो आप प्रोफेशनल बहुत सारे प्रोफेशनल से मिलके ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। बट व्हेन आई एम इन यूथ एज, या मैं जब स्टूडेंट हूँ या मैं यूथ एज में हूँ, तो उस टाइम पे मेरे लिए सबसे अच्छे कुछ तरीके बताएं कि हाउ आई एज एन इंडिविजुअल कैन लर्न सम ऑफ द इमोशंस that are present around us, and that's basically inside us. देखें पहले तो एक बात, वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में खास तौर से इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाना चाहिए, शुड बी अ सब्जेक्ट। आई रिमेंबर वे बैक इन 1996 आई यूज्ड टू टीच इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इन कराची। जब मैं पाकिस्तान में आया था तो मैं पढ़ाना शुरू किया था एक जगह जहाँ पे मेरे एक क्लास में लेता था, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्ट का था, कि वो पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन ऐसा कुछ था, विच वाज एक्चुअली कि बोलना सीखो। मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था और एक ये था। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ जबकि मेरी क्लास फुल होती थी मैनेजमेंट वाली क्लास में, ये जो कम्युनिकेशन क्लास, ये मुश्किल से 30 में से कोई 6 लोग आते थे, क्योंकि लोगों को इसकी अहमियत समझ में नहीं आती थी उस वक्त, तो बिल्कुल भी 97 में। आई थिंक ये एक पार्ट तो है कि देखें ये द एजुकेशन सिस्टम शुड अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा, अभी भी होना चाहिए। इसके चैलेंजेस पे एक और भी एक चैलेंज निकल आ जाता है, कि कितना करें कितना ना करें, कितनी समझ में आए ना आए, लेकिन ये रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अब मैं आ जाता हूँ इंडिविजुअल लेवल। लेट्स से समवन लाइक यू और फॉर अदर्स, फॉर एग्जांपल, जिसको आपको स्कूल में नहीं मिला, तो देखिए ये क्यों कहते हैं कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड व्हाट डू यू लर्न, जो मैंने शुरू में कहा, जब मैं काम करता हूँ वो बड़ा हार्डकोर करता हूँ। आई डू स्ट्रेटजीज, आई डू बिजनेस मॉडल। मैं आपसे कह रहा था एक और नए बिजनेस के अंदर मैं जा रहा हूँ अभी, तो उसके अंदर बिल्कुल ही नई चीज़ है, इट्स अ न्यू एरिया। मैं केमिस्ट्री के काफ़ी टर्म्स जो है वो सीख रहा हूँ आजकल, बिकॉज द इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट। एट द सेम टाइम what is also happening is I am practicing and I'm studying my emotional intelligence, तो मैं skills ये यूज कर रहा हूँ। तो कल जब मैं किसी का गया था गुफ्तगू करने, नेगोशिएट जो करने गया था मैं, दैट नेगोशिएशन वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन माय इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं। आपने सुना होगा, ओए इंसान बन जा। हम क्यों कहते हैं इंसान बन जा? यानी कि इमोशंस को हम सही तरह यूज नहीं करते, और जब हम ऐसे से बेहतर होते जाते हैं, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। इट्स अ जर्नी एंड दिस इज परहैप्स द रियल जर्नी ऑफ इंसान बन जा। सो लेट्स स्टार्ट बिहेविंग, ऐसे तो होगा। अभी भी ऐसा नहीं कि मैं भी कोई इंसान बन चुका हूँ, अभी भी मेरा मीटर भी बहुत आउट होता है, कुछ कुछ लोगों को पता है। लेकिन सवाल ये हाउ क्विकली यू बाउंस बैक, क्योंकि ये स्ट्रेस ऐसा नहीं कि एक दफा कर लिया जिंदगी भर वैसे ही रहेगा, ये चेंज होता रहता है। अब भी सही होगा, 15 मिनट फिर कुछ होगा। जब मेरे पास समझ होगी, व्हेन आई हैव द इंटेलिजेंस, आई विल गेट इनटू द ग्रूव क्विकली। इफ आई डोंट हैव द इंटेलिजेंस, देन आई विल ऑल ओवर द प्लेस। सो माय रिक्वेस्ट इज कंटिन्यू लर्निंग, और एक सोर्स पे मत रहें, और किसी की भी एक बात को सही मत समझे। लोग गलती ये करते हैं, एक किताब पढ़ के आ जाते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट समझते, फिर कोई एक दूसरा जाविया देगा, गुफ्तगू शुरू करते हैं, बट यार बट मत बोलो ना, बोलो एंड आई हैव read this and what you are saying is also interesting. I have read this but what you are saying is wrong. I've read it but what you are saying sounds interesting, but वो बट जो है ना, वो दिमाग के अंदर बंदे को फिर रिवर्स ही लेके जाता है। तो read up a lot of different things. मैं आजकल, लोग मुझे पता है आजकल आप क्या पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा है, with no more flying, no more hotel points being collected, जिसी तरह के इमोशन, बट तो ऐसे में मैं पढ़ता क्यों यार, मेरे हाथ में जो आता है ना मैं पढ़ लेता हूँ, फिर चाहे आर्ट्स हो चाहे टेक्नोलॉजी की किताब हो। जो मैं वाकई पढ़ रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, वो है केमिस्ट्री की किताब है। लेकिन उसके अलावा मैं जो भी हाथ में आ जाता है पढ़ लेता हूँ, और उसको जो पढ़ता हूँ ना, मैं ये नहीं पढ़ता कि अच्छा अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ मुझे किसी को सिखाना है। मैं पढ़ता हूँ अपनी नॉलेज के लिए, फॉर माय ओन इम्प्रूवमेंट, बिकॉज यू सी वी नीड टू टेक लर्निंग टू हेल्प अस विद व्हाट हेल्प। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, लोग सेशंस अटेंड करते हैं कि मैं मटेरियल कॉपी करूं। यार आप सेशन करते हो, आप देखो आप अपने काम के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हो, उसमें महारत आती है, एंड देन यू विल एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस। यू विल नॉट बेनिफिट इफ यू से आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग, दिस इज माय जॉब, दिस आई एम लर्निंग एंड आई विल टीच द सेम थिंग। लेकिन जो मेरी लर्निंग, जो मेरा काम है, उसको मैं वैसे ही करता रहूंगा जैसे करता रहूंगा। यार जिगर ये तो नहीं होता ना।
You need to be able to learn continuously, and I think lots of resources. हर जगह religion, philosophy, हर जगह emotional intelligence का. Reading a book on organizational culture, reading a book on cities is emotional intelligence. Reading a book on diversity is emotional intelligence. Reading the story of a person who survived the Holocaust is emotional intelligence. And I've just had a very vast definition of it. So technically I can get सवाल आए. उमर का एक सवाल बड़ा अच्छा वापस आया. उमर का एक क्वेश्चन है, लेते हैं. Thank you, Umar, for that you like to use this answer. Employees work. They're in a job, they can't leave the job. आपकी आवाज They have to live. Is it fine now? हाँ बिल्कुल सही है. Yeah. So अच्छा देखिए, these are I'm not going to. और मैं इसका बड़ा छोटा सिंपल आंसर दे दूंगा एक एग्जांपल के थ्रू. आई लव स्टोरीज. In fact, my next book is also almost ready now. 90% it's ready. So I do a lot of stories. And Umar, आपका सवाल बड़े अच्छे हैं. And I'll give you a very quick reply to this. And लेकिन मैं मैगी नूडल वाला 2 मिनट वाला नहीं दे रहा, अच्छा जवाब दे रहा हूँ मेरे हिसाब से. Being victimized, insulted, अच्छा ये एक तो है ना, this is victim mentality. सबसे पहले तो याद रखें ये mentality बंदे के खुद के अंदर है. तो if I were in that place and if that person needs coaching on this, first thing that you do is help that person realize that listen, this is feelings inside you, you're feeling like this. This is not your operating system, इसीलिए अंदर एक conflict चल रहा है, इसलिए आप खुश नहीं हो. तो सबसे पहले तो उस फीलिंग को recognize करो और उसको बोलो हाँ ठीक है क्या चाहिए बताओ, इसका हल क्या है. I don't know, ये सबके सिचुएशन अलग अलग होते हैं. कई दफा लोगों को लगता है मेरा बॉस बहुत सड़ू है, बहुत फंसाता है, ये देखिए. कई लोग आगे कोई 15 साल बाद याद करते हैं यार वो जैसा भी था ना बंदा सही था, मुझे रगड़ के रखा था लेकिन सही रगड़ के रखा था. मैं भी अगर अपने जैसा होता मैं अपने आप के साथ भी यही करता. तो मतलब ये कि उसका आप वो जो कर रहे हैं वो तरीका, वो बात सही है, तरीका उसका गलत है. जब उसका तरीका गलत है, you know what, you need to understand the style. For example, I remember there was this one person I was working with. उस बंदे के साथ मसला ये था, वो जब भी फ्री होता था ना, और अगर सीनियर था, वो जब भी फ्री होता था, अगर आओ बैठो, अब बैठो, उसके साथ बैठो, हाथ पे हाथ धर के बैठो, जब तक वो काम करे वो आपकी बेइज्जती करता रहे. ऐसे होता है, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, रकड़ रकड़. दूसरी आप उससे करे, ये नहीं ऐसे हो रहा, बैठो, अपनी पूरी टीम को बिठा के बैठो और काम खुद करो. बाकी सब लोग कहते हैं, हम लोगों में मजाक क्या होता था, आपको तो बेइज्जती प्रोग्राम होनी है थोड़ी देर में. तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये पता है क्यों होता है? क्योंकि उसको नजर आता है हम सब फारिग बैठे हुए. मैंने क्या शुरू किया, मैंने मेंटेन करना शुरू किया बहुत पहले, वे बैक इन एजेस बैक. जिस जमाने में ये कैलेंडर मेंटेन करना फैशन भी नहीं था, मैंने कैलेंडर मेंटेन करना शुरू कर लिया अपना. अब जब वो कहता था ना कि आओ मीटिंग करनी है, मैं कहता था यार मेरी एक मीटिंग है यार 5 to 6 आई वाज प्लानिंग टू डू दिस. सो इतना एस्टैब्लिश हो गया, अच्छा ये कर, चलो ठीक है तुम जाओ. आई थिंक दैट बुलिंग हेल्प मी बिकम मोर इफेक्टिव बिकॉज आई डिड नॉट ट्राई टू चेंज द पर्सन. आई ट्राई टू मुझ में क्या क्या खामी है जिसकी वजह से वो मेरा फायदा लेता है, मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है. आई रियलाइज मेरा टाइम मैनेजमेंट, मेरी सेल्फ रेगुलेशन वाज आउट. Using emotional intelligence language, I regulated myself and I motivated myself. And वजह शुरू से मैं बहस करता, मैं कहता कि मेरे शेड्यूल में ये है, अब आप इस काम को बोलते हो बाद में कर लो, तो फिर मैं भी ये कर लेता हूँ. तो what did I do? I maneuvered the conversation in a way that was beneficial to both of us. वो भी कोई घर का काम तो नहीं करवा रहा था ना, लेकिन मैंने अपना टाइम तो मेरा काम रह जाता था उस तरफ फजूल में बैठने में. तो I improved myself. So that is what I would say. And this is emotional intelligence. I regulated myself using Daniel Goleman की language. Do you want me to take more questions because नहीं आने दे. Okay, so I think let's take more questions then. शिराज का सवाल इसके फौरन बाद है. क्या है, मुझे खाली सवाल या निशान नजर आया, मैं पढ़ लेता हूं. शिराज का सवाल है, I see that most people aim to improve their career life out of pressure, either from parents or society, rather than self-motivation. Pressure is always more dominant here. What's your advice on managing this? I would actually start off with self-awareness. कि देखिए सेल्फ अवेयरनेस के अंदर इसको मैं जो आपके सेल्फ रेगुलेशन के अंदर भी आता है, वैल्यूज आपके क्या हैं. तो सेल्फ रेगुलेशन के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज वुड कम अंडर सेल्फ रेगुलेशन. मेरे लिए क्या जरूरी क्या जरूरी नहीं. मैंने अक्सर देखा लोग कहते हैं मैं तो ये करना चाहता था लेकिन पेरेंट्स की वजह से मैंने ये किया. तो मैंने कहा बेटा भाई रोना धोना मत करो, बिकॉज योर वैल्यूज आर पेरेंट्स. You chose that decision. Learn to own up those decisions. Find pride in the fact that I did it because I value my parents. नहीं करोगे तो भी दूसरी चीज को, ऐसा नहीं कि you don't value prayer. It's a question of priority ना यार, कि जो आप, और लेकिन जो सिलेक्ट कर लिया उसके ऊपर पूरा उतरो. जो नहीं करना उससे रोना धोना नहीं करो. ये रोना धोना जो है सबसे मसले वाली चीज हो जाती है. तो look at your values.
योर वैल्यूज विल गाइड यू। आगे शिराज का सवाल कि सबसे पहले ये कि ये प्रेशर, और मैं प्रेशर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डीप डाउन देयर इज अ वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट इन दोज पीपल। So I would actually advise them to look at what is the value. कुछ लोग अपना काम, बाहर का काम छोड़ के पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, भाई क्यों आए यार, मैं पेरेंट्स की वजह गंदी शक्ल नहीं बनाओ ना। वैल्यू थे, इंपॉर्टेंट थे, यू रेगुलेटेड योरसेल्फ। अगर उधर कमाई ज्यादा था तो वहीं पे रह जाते, लेकिन रोना धोना नहीं क्यों ना, दैट्स योर मोटिवेशन, दैट द मोटिवेशन। ये देखिए ये इतनी, इसीलिए तो इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सरफेस पे नहीं है, इसको डीप डाउन जाके निकालना पड़ता है कि अंदर है क्या कहानी। और सोचेंगे तो यू विल एक्चुअली, यही लोग जो शिकायत करते हैं वो अपने वैल्यूज एनालिसिस करेंगे, दे विल एक्चुअली स्टार्ट फाइंडिंग प्राइड इन द डिसीजन दैट दे हैव टेकन, दे विल नॉट फील द प्रेशर। लेकिन हाँ सही है ना, एटलीस्ट मैंने असूलों के ऊपर कुछ किया, ये असूल मेरे लिए जरूरी थे, बिकॉज दैट्स द डिसीजन यू टुक। सो दैट इज माय, आई डोंट नो एडवाइस, बट दीस आर जस्ट माय थॉट्स ऑन इट। मैंने कहा ना मैं अवॉइड करता हूं एडवाइस देता हूं, मैं दीस आर जस्ट थॉट्स, but it is and thoughts are based on research. So जैसे मैंने कहा ना कि self regulation है, values है, question ask, reflect on the values, reflect on the values. Yes. Your colleague Noman, I think, is here as well. He's saying, Farhad, wonder why are you not teaching anyone anymore in the educational institutions? I guess it's really I know where this is coming from. यार I एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, वो बात हुई कि जी हमें एथिक्स सिखाना है, वैल्यूज सिखानी है, उस पर आके बात करके दें, टॉक जो होते, तो मैंने कहा देखो इतना जरूरी सब्जेक्ट है, व्हाई नॉट डू इट विद मोर इंटेंट एंड क्लैरिटी एंड चीजें, एक कोर्स बना लो उसका। I did not even negotiate on the financials. Just to give you an idea, I did not negotiate too much on the, I did not negotiate on the finance, forget too much. मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं क्लास लूंगा, मैं ये हफ्ते में एक दफा, दिस इज बिफोर द कोविड डेज ना, तो मेरा टाइमलाइन जो ना बड़े टाइट टाइट चलते थे। तो हुआ ये कि मैंने एथिक्स एंड वैल्यूज, ऑब्वियसली जरा ट्रिकी सब्जेक्ट था। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को, पहली क्लास हुई वो लोग काफी डिस्टर्ब गए, दूसरी क्लास हुई, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, फिर तीसरी के अंदर जो है ना, I could actually see the students being disturbed. I mean, as somebody coming to you after class, there's a group of 3-4 students sitting and challenging you, a 24-year-old, 23-year-old, challenging you, नहीं सर देखिए आपको पता नहीं है कि दुनिया में क्या होता है। I'm not sure, because he probably thought that I was just like another person who teaches from morning to evening. I said, beta, with all the different businesses I have in different parts of, and I did not say this to him. Like obviously उस वक्त मेरे अंदर गई, मैंने क्या कह रहा है, लेकिन I could also understand ये कहाँ से आ रहा है। They were disturbed. Most of them were. Interestingly, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के जो मैं फॉलो अप करता रहा 3 हफ्ते तक, वो जवाब नहीं आ रहा, अच्छा करते अभी नहीं, डिले करते, आज ये फंक्शन है, आज वो फंक्शन है। तो मैंने कहा बताओ करना ही नहीं कर, वो नहीं, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स कहते हैं कि दूसरे क्लासेस हैं वो करना। मैंने कहा ठीक है, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, मैंने कहा यार देखो, व्हाई डिड आई वांट टू टीच एथिक्स एंड वैल्यूज, बिकॉज़ दैट इज व्हाट दे नीड। यू आर गिविंग देम ओनली व्हाट दे नीड, यू आर नॉट गिविंग देम व्हाट द सोसाइटी नीड्स। अभी जो हम लोगों ने टीम टॉक्स जो शुरू किया हुआ है फनवर्क्स के अंदर, वो क्या करें, हम बच्चों की सुन रहे हैं ना, हम चाहते हैं समझना, because this is where the future lies. We have to understand what are they thinking. Ethics and values की बातें होती हैं, केस स्टडियां करवा देते हैं ये बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर, छेड़ते नहीं है दिमाग को, छेड़ो ना उनके दिमाग को। तो yeah, and Noman, even you know it, I know it, even at Danish, you also know it. If a professor says compassion has nothing to do with business, what do you tell such a person? What do you call of that institute? थोड़ा दो बात आगे निकलेगी। Acha, so, compliment for you. Love the way you send messages across. You make it very Thank simple. you, Aziza. I'm just a very simple person. That's the magic of Farhad, Aziza. We have been following it for the last so many years. Salma has a question as a parent. So, what should I do as a parent to develop my child's EQ? Also, how should I teach my kids not to develop negative emotions? What should I do to, okay. अच्छा, ये मैंने चुप इसलिए किया क्योंकि मैंने इधर एक आवाज दी किसी को, कम। Now, what should I do to develop my child's EQ? I have a 16-year-old and I have इसको बुला रहा था, my little princess. Princess, say hi. Hi. Wave. Hello. Are you happy? Are you happy? Yes. Hello. Now, you see, we've all got kids. I've got a 16-year-old and I have this one. Her birthday is the next couple of days.
देखिए ये जो हम कह रहे हैं ना, हाउ शुड आई टीच माय किड्स नॉट टू डेवलप नेगेटिव इमोशंस, इज नॉट टू गिव देम एक्सेस एंड रोल मॉडल नेगेटिव इमोशंस. You scream and yell in front of them, you are feeding already into their system. You don't respect them, you're feeding that into them. आप तुम तराका करके बात करेंगे बच्चों के सामने, ये तुम तराका करके ही जवाब देंगे आपको एट वन पॉइंट इन टाइम. आप लड़ेंगे झगड़ेंगे वो करेंगे. आपका हर जुमला ना से शुरू होगा, एक पॉइंट आएगा ये आपको भी ना ही कहेंगे, because it is very common to say no. And I think that is the starting. And I don't know how old your child is, but in order to develop, and I don't know if it's about developing emotionally too, but yeah, I think it is. But actually contributing to the emotions, because emotions are already inside. सवाल करें, बात करें, just speak to them like you would speak to an adult. और जिसके अक्सर ये भी कहते हैं, साहिब knows, जॉन किंग generally says के talk to adults like you're speaking to an 8-year-old. इसलिए आसान अल्फाजों में इस्तेमाल किया करो. तो बच्चों के साथ भी जो है आसान अल्फाज, उनको ये मत करो, सिर्फ व्हाट एल्स कुड यू हैव डन. ये हर नो, ओके, बच्चा अगर कहता है नो, ओके सो कैन आई हैव अ रीजन फॉर दैट, तो मुझे समझा दो कि क्यों नहीं. ठीक है, अगर आपको नहीं खाना, नहीं क्यों नहीं खाना, देखो ये चीज आपके लिए अच्छी है. खास तौर से शुरू में, एटलीस्ट इन द पर्सन हिट्स अबाउट 10 to 11, उस वक्त तक जो है ना बच्चों को स्पेस दें एंड दे विल फ्लरिश. एंड दे लर्न नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. और मजे का हम जितना भी कर ले ना स्कूल में, टीचर्स जो है ना वो लोग भी कभी का खराब करने का पूरी कोशिश करती है, बहुत इफेक्टिवली कामयाब भी हो जाते हैं टीचर्स बच्चों के. यस नो डिसिप्लिन पैटर्न, और आप बच्चे को कहते हैं नॉन पैटर्न. I'll give you an example of my daughter. My son never did this. My daughter has this habit of drawing on everything and anything that she could lay her hands on. Now she's probably realized कि हर जगह नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाता है. तो जब वो लिख देती है, मैंने कभी इसको, my wife and my son, like, why don't you tell her that she's the one who's writing? I said the problem was who kept a marker in her access. उसे कहा nice, that's beautiful. You think it would have looked nice on a paper? लेकिन दूसरों को मार्कर क्यों उसके हाथ में दिया? बोलते तुम्हारे पास जो मेरे ऑफिस के अंदर पड़े हुए होते हैं मार्कर, दिस इज हाउ मार्कर ऑल ओवर द प्लेस. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको कन्वर्ट किया. बट यू डोंट, हमारे यहाँ कहते बच्चों को भी चढ़ाई कर देते, भाई आपने एक्सेस क्यों दिया था बच्चों को मार्कर्स का? मेरी बेटी ने सत्यानाश मारा मेरे डीवीडीज का. माय फॉल्ट, क्योंकि मैंने जगह ऐसी रखी थी, इट वाज इजी एक्सेस टू देम. I hope that you mentioned somewhere that our mind don't think A4. So जब भी हम बच्चे को पेपर पे देते हैं कोई ड्राइंग करना या कोई चीज लिखना, so because the child's mind is imaginative and their cognitive skills are much higher than an individual who is a professional. So what's your take on that? How will you elaborate on that particular thing कि जब भी बच्चा कोई ऐसी चीज कर रहा है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, should parents allow them to continue with the experimentation, or should restrict them to such tools जहाँ पे इसको implement होने चाहिए? If it is safe, my suggestion would be, and again disclaimer के साथ, क्योंकि ये ऑनलाइन है, I don't know कौन किस तरीके से दे रहा है. I think यार ऐसे टाइम पे मेरा कंसल्टेंट जाग जाता है ना, this is your choice. But for example, with my daughter, I would generally encourage her to experiment with lots of things. थोड़ा कर भी ले तो मसला नहीं, but not to the extent of पावर सप्लाई में हाथ डालना. अब एक तो पहले तो पावर सप्लाई को बंद ही रखूँ मैं. डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना बच्चों को, जो चीज़ सही नहीं है ना, मैं छुरी की कैंची को करना है नॉट राइट नाउ, तो उसके एक्सेस उसको ना दें, आहिस्ता आहिस्ता दें. लेट्स सी हाउ यू होल्ड दिस, उसको सिखाएं. बट ऐसे पहली दफा कैंची हाथ में दे देंगे, लेट द चाइल्ड सी. और वो बच्चे जो है ना, वो ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है ना, जैसे ना बंदर देखिए इमिटेट करता है, बच्चे काफी चीजें इमिटेट करते हैं. आप सही चीज करेंगे वो इमिटेशन सही करेंगे, आप सही नहीं करेंगे बच्चे आपको कॉपी गलत तरीके से करेंगे. इफ यू आर केयरलेस दे विल बी केयरलेस. So be extra careful in front of them and see how you are role modeling yourself. Then you have answered it well. So we have another parent here, and definitely ये भी जानना चाह रही है that how to manage your emotional part, especially in the world where we all are online and doing all the work from home. Especially in the Pakistani context, we are hesitant to turn on video during the official meetings. So it's really hard to judge the emotions and intentions of the leads. So जो ये ऑनलाइन इंटरवेंशंस हैं या जो ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं काम, मीटिंग्स फॉर से, सो मीटिंग्स में हम कैसे पता कर सकते हैं कि सामने वाले की इस वक्त क्या इमोशंस हैं, किस तरह से वो
किस जो है वो तरीके से वो बैठा हुआ है, किस माइंडसेट से बैठा हुआ है. Are there any tips for understanding There their is emotion? there's a lot of recent study on this. Again, I'll try to, in my terms, try giving a quick reply. इसके तो बहुत सारे रीडिंग्स भी हैं, बहुत सारे तरीके भी हैं. नमान को भी ये पता है. नमान, I think first ये नमान and myself spoke on this कि बहुत ज़रूरी है लोगों का कि अपने स्क्रीन ऑन रखा करें. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप योर, इट इज़ जस्ट गुड डिसिप्लिन. ये जो आते हैं ना जूम पे आगे, नहीं मेरा हुलिया सही नहीं है, मेरे बाल सही नहीं है, मेरे, यार आपका होना सही जरूरी है. क्योंकि परफॉर्मिंग फ्रॉम होम जो आपका तरीका है, आप आए हैं तैयार होके ना, यू जस्ट सिटिंग एंड यू देयर इन अ जोन. So देखिए, this is, these are normal etiquettes now of online platforms. You have to go online. You have to show your face. ये तो जरूरी है. At the same time, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं, is this be a complete substitute to face to face? नहीं. This, for example, if you study trust is developed when you attend to the entire body language. You know, the first meeting अभी भी है, और ये इसका आर्टिकल था, I think Howard में था या Bloomberg में था, Forbes में था, पता नहीं. One of those magazines I was just flipping through. You know, I'm keeping a lot of reading material. उसके अंदर ये था कि ये जो हम कहते हैं ना कि ट्रस्ट डेवलप करने के, ट्रस्ट के लिए फेस टू फेस अभी भी जरूरी रहेगा. क्योंकि जिसको लोग न्यू नॉर्मल कहते हैं, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट न्यू नॉर्मल, वेरी नॉन नॉर्मल. जहाँ पे जाके सेटल होगा वो तो वैक्सीन के बाद पता चलेगा सेटल असल में हुई कहाँ दुनिया. लेकिन there is no substitute to face to face. Human beings are social animals. We need, what are we doing right now? We are also still socializing in our own way, and for many this is not yet socializing. Emotional connect, we rub off of each other's energy. So there are techniques and there are tools, and when you go online, you can read about it. लेकिन जरूरी है, लेकिन हो सकता है, लेकिन it is not a substitute. It doesn't 60% पे आ जाता है उससे, according to research. Okay, Umar has a very good question regarding the ego. So, ego is a mindset or emotion, or how to deal with egoistic mindset. My 3 questions, and I'm enjoying a lot. Thank you, Umar. Umar, जो आपने कहा ना कि ego, I don't want to get into the semantics of mindset versus emotion की टॉपिक बहुत खुल जाएगा. मैं इसको सिंपल रखता हूँ. ईगो को अच्छा है, और मैं ईगो की मिसालें दे देता हूँ. ईगो की हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग. Intelligence and other brain sciences that you have. Because I've done different set of brain science. I've done the human wala. I have a yellow brain, for example. So yellow की वजह से मैं जरा ज़्यादा सोचता हूँ. According to my coach, anyway. So, and it's quite evident by the fact of your speed of your language as well. I mean, you speak so fast because there are a lot of thoughts coming in your mind, and you want to just spit out all those thoughts in some form of expression. Very polite of you to tell me that way in such nice ways. कि slow down. Actually, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब. मैं slow मैं जरा speed में. Let me go into ego. अच्छा, ego को देखिए define करने के अलग अलग तरीके हैं. And ये emotions के साथ नजर आते हैं. ठीक है, हमारे इमोशंस की वजह से हमारे ईगो नजर आता है. फॉर एग्जांपल, आजकल जो हालात चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये हुआ कैसे हमारे साथ, ये क्यों हुआ, मेरा बस चले मैं इन लोगों के साथ ये कर दूं, मैं वो कर दूं. You know, how dare this thing happen? When you are saying this, you are in an emotion of pride, and you're an ego. So you're in an ego state of mind, triggered by the emotion of pride. गुस्सा आ जाना, उसकी हिम्मत कैसे हुई, यार मैं अभी इसको देखो हिसाब बराबर करता हूँ, वो भी ईगो है. डरना कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट हूँ, मैं गलती नहीं कर सकता या कर सकती, ईगो. मेरे पास है, मुझे और चाहिए, ईगो. इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस इज ड्रिवन बाय वन वर्ड. अगर मैं कह दूं दैट इज ईगो. A lot of our negative emotions are demonstrated with ego. ये ईगो अंदर से, और ईगो आता जो है ना, ये दिमाग से जो है ना कि भाई आई एम सुपर पावर, मुझे सारी चीजें पता है. ये फीलिंग्स की हिम्मत कैसे होती है, ये चीज करनी, ये हिम्मत कैसे हुई है. तो फीलिंग्स करके ईगो जो है वो फीलिंग्स का, इमोशंस का सपोर्ट लेता है एक्शन दिखाने के लिए. इट्स अ डीप क्वेश्चन. People are commenting on Farise. हाँ, दैट इज Farise. Farise, I think you should include them on TeamStalk as soon as she runs. आपकी आवाज थोड़ी हल्की हल्की आई मुझे. Actually, क्या Farise को आपने include करना होगा in the TeamStalk as soon as she turns 13, because a lot of people are now already fan of her. All right. So
Okay, so let me check out if there are any questions. Otherwise, I have few questions to ask, and then we can conclude. Okay, we have a question. Maybe you can just answer to this one. How to control EI when you are angry or upset? Um, the desire to control, the desire to control is also stemmed by ego. तो पहले तो ये अभी तो इसको थोड़ा सा पार्क कर लेते हैं ना, हाउ डू आई कंट्रोल, लेकिन give love to understand the emotion, पहले तो understand the emotion, understand कि you are angry, what are the emotions that are associated with it. फिर देखिए इसमें आपको टाइम चाहिए, तो you take some time out. If I'm angry, I need to actually think, अच्छा क्या मसला है, क्या हुआ, क्या मुझे ये गुस्सा क्यों आया हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर इतना इरिटेट हो गया है, तो ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, जस्ट सेल्फ अवेयरनेस एंड आई एम ट्राइंग टू रेगुलेट, सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन यूज करते हुए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई डिड इट हैपन, I need to understand. Speak to those. You see, when you speak to emotions, you let go of those emotions. They feel they are valued. गुस्सा अंदर आया हुआ है ना, अपने अंदर गुस्सा किस चीज का आया, जरा बताओ क्या चीज थी इसमें जो अच्छी नहीं लगी. Try using sense into that. That is intelligence. तो आपने इमोशन को पहले शुरू में जो मैंने कहा लेबल कर दिया, ये इमोशन ये है, उस इमोशन को लेकर नाराज क्यों है, अना तो नहीं है, सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करूँ, अना है, इतना गुस्सा आने की क्या वजह है, अना चिड़ जाना, मेरे हिसाब से नहीं हुआ चीज, नहीं हुआ तो क्या करना, क्या है, व्हाट यू वांट. सबसे बड़ी चीज, जिसके ऊपर गुस्सा हो ना, उसके साथ आपने जो भी करना है करो, लेकिन अपने अंदर से वो जो नेगेटिव इमोशन है उसको फिल्टर करना बहुत जरूरी है. और उसको फिल्टर करने का तरीका है उससे बात करना, उसको रिकग्नाइज करना, उसको दबाना नहीं. लोग 3 गलतियां करते हैं. इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट डाउन ऑन द चैट, दानिश, इफ यू वांट यू कैन पुट दिस डाउन इन द चैट ऑल्सो. 3 चीजें जो लोग गलत करते हैं कंट्रोल के नाम पे. एक तो लोग करते हैं सप्रेस करते हैं, दबा जाते हैं, पानी पिलने की, माफ कर दो, माफ कर दो. माफ आपने फिजिकली किया है, अंदर तो है ना अभी तक. तो एक चीज करते हैं, दे सप्रेस इट. दूसरी चीज जो लोग करते हैं वो एक्सप्रेस इट. वो तो गुस्से का उल्टी कर दो सामने वाले पे, थका हटा. The first thing they do is suppress. Second thing they do is express. Third thing they do is escape. So for example, Netflixing is a way of escaping. टीवी देख लो, ये कर लो, चल चल जाओ, चल चल अलग हो जाओ, भाग जाओ, कहीं और चल जाओ. ये तीनों चीजें आर नॉट वेज ऑफ handling emotions. The way of handling emotion is to recognize, appreciate, and communicating with your feelings. Recognize, appreciate, and communicate with those feelings. It's a race. तो ये 3 चीजें, और ये गलती यही चीज करता है. और कई दफा ज्यादातर लोगों में देखा स्ट्रेस मैनेजमेंट की आड़ में सिखाते ये चीजें, या बोलते नहीं माफ कर दो, माफ कर दो, या वो तरीके सही नहीं है, जाने दो, तो ध्यान इधर उधर कर लो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा. सही कर लो ना, रिकग्नाइज क्यों नहीं करते हो, कौन सी ऐसी अना है जो रोकते हो टू यू फ्रॉम एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट. इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी, व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम. You have very nicely explained this phenomena. A lot of people are praising our session, very interesting, and a lot. My dad. Samad is saying interesting topic. Yes. Well, so wonderful to see you, Sabad. My wife is also praising this. Thank you so much, Samir. Uh, okay, so I think we have another question from Shiri. When we identify emotions, what should we do? Should we be empathetic or sympathetic? So, एक तो ये कि शिरीन, ये आपने जो लिखा हुआ है ना, देखो वर्ड्स की भी असर होती है. इतना ऑल कैप्स के साथ मुझे डांट रहे हो आप. तो ये ना ऑल कैप्स है, अच्छा, बट आई अज्यूम नहीं डांट रहे हो. आजकल हम लोग ये काफी स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन लिखने का, इमोजी वगैरह, स्माइलीज का क्या क्या होता है. तो स्माइली बनाते हैं चीजें, इट कम्युनिकेट्स इमोशंस अगेन, इमोजीज. When we identify emotions, what should we do? I am not very clear with the question. Maybe Danish, you could explain, or maybe Sheen, you could rewrite. कि जब मैंने इमोशंस आइडेंटिफाई किए तो उसको फिर इसमें एम्पैथी और सिंपैथी दोनों आया कहाँ से, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और या क्या सिचुएशन है. Probably I think Shireen is asking about कि क्या हमें बिल्कुल ही नरम मिजाज हो जाना चाहिए, सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुन के खत्म करना चाहिए, या should we calm down, sit down with ourselves first, reflect, and then respond to that scenario or situation. So I think empathetic और sympathetic यही है कि आप उसी वक्त अपने सारे हथियार डाल दें, आप अपनी
वरना वो साइड पे रख के आगे बढ़े, और अदर वेज राउंड के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें एंड सी के सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इसी तरह, और क्या कुछ और किया जा सकता है, things like that. So what's your take on this? Yeah, first I'll start off with the definition. I think that will be a little easier for me also to unfold and unpack the question थोड़ा बहुत. पहले तो एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है. आई थिंक ये बहुत अच्छी एग्जांपल वो मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई नहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस में था कि मैं अपनी बेटी का जो ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता क्योंकि ना दैट इज सिंपैथी और डिस्टेंस होके ये जो कहता है इफ आई वर इन योर प्लेस सिंपैथी है बेटा. इफ क्योंकि इफ डाल दिया दैट मींस यू आर नॉट इन माय प्लेस. तो एक तो वो है. लोग सिंपैथी में क्या करें. एम्पैथी में मुझे पता है कि आपको दर्द होगा लेकिन मैं फिर भी करूंगा. आई विल नॉट लेट गो. सिंपैथी के ना है बेचारा चलो क्या करना छोड़ दो. अगर सिंपैथी दिखा के इफ इट्स अ कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पर्सनल वैल्यूज, if sympathy is a compromise on your personal value, don't show sympathy. Show empathy. And ज़्यादातर the rule of thumb is that you need to have empathy. Sympathy है बेचारा बस इतना कह के छोड़ दिया ना फिर मैं खाने पे लग गया वो sympathy हो गई. अरे देखो क्या हो गया and move on. Empathy का मतलब है जाके फिर भी जो करना है वो करना है. तो फॉर एग्जाम्पल फॉरगिवनेस. यार मैं बोलूंगा उसको बुरा लगेगा चलो छोड़ दो सिंपैथी. नहीं यार मैं बोलूंगा उसको बुरा लगेगा लेकिन मैं बोलूंगा फिर भी क्योंकि बोलना जरूरी है. दैट इज एम्पैथी. उसको बुरा नहीं लगेगा जिस तरीके से मैं कहूंगा would actually be demonstration of that empathy which is compassion. The demonstration of empathy is compassion. So it's not only मैं इसको बोलूंगा लेकिन उसको ऐसा फील होगा लेकिन कोई बात नहीं मैं बोल देता हूँ. नहीं आप बोले और अगर आपको वो फीलिंग नहीं देनी आप फीलिंग चेंज करवाएं. तो डोंट जस्ट लेट गो. सिंपैथी बोलेगा चलो जाने दो. I think this must have answered your. No, not at all. I'm not scolding her. No, मजाक कर रहा हूँ. I think it's just like लेकिन ये भी और कैसे आया. वो कैप्स में ऐसा मतलब वो अम्मी कहती है ना कि मैं नहीं डांट रही तुमको. It's just like that. अच्छा. But she, I appreciate your participation. Yeah, thanks for the participation. Interesting for me. मुझे थोड़ी Alright, शरारत so okay, so I think we have overrun our time, but I think the conversation is going on so well. Let's maybe conclude our session with a couple of more questions, and if participants have any other question, please आप अभी put up करें. We have the very less time now left. Okay, so self-awareness के हवाले से, as Sahib also mentioned, as you also mentioned, that Dan Goleman has given us 5 elements of EQ. And it includes self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. For the viewers, I just wanted to clarify that ये जो emotional intelligence का term है, that is created by 2 researchers initially, Peter Salovey and John Gale, and then इसको popularize किया Don Goleman ने in his book which he wrote in 1996. So उसने ये 5 जो है वो elements दिए of EQ. And the first one is of course self-awareness. So we want now to understand from Farhad how one can get aware of himself or herself. What are some of the practical exercises you will recommend to people from your personal experiences? Because we know for the fact that there are a lot of tools, there are a lot of things available online. जो self-awareness tools जो है आप ले सकते हैं. But do you recommend anything that you have done with yourself, any practical exercise that you have done to make yourself more self-aware? There are a lot of things that you could use. There are a lot of questions. I keep doing it very frequently. I think me doing the Herman Brain is an example of that. This recent past, I've really found a lot of value in this HBDI, the whole brain thinking model. समझ में आया कि मैं सोचता हूँ उसके पीछे मेरा जिसको मैं कहता था मेरा technical मसला है. It's not a technical. It's my default behavior to think yellow. So इस तरह के क्वेश्चन है बहुत सारे. अगर आप मुझे स्पेसिफिक कहना अगर हर कोई अगर करना चाहता है there are a lot of questionnaires, assessments, देख ले. बट अगेन जरूरी है कि देखिए आप जो पढ़ते हैं जरूरी का फॉर्म मान ले. मैं हर चीज में ये कहता हूँ जरूरी हर चीज को आप गॉस्पेल ले लेगा यही चीज सही है. It is yet another thing, and they keep on improving and changing. So it is good to learn and discover and do things. Maybe what you could do in order to improve your self-awareness is daily just do a reflection of how did I behave today. How did I behave today? And
Identify surprises because your self-awareness resides in the surprises you give to yourself. कभी कभी बड़ी गुस्से लिया उससे क्या लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं आज. That is self-awareness कि मैं हर चीज में नहीं बोलता. This is every time you surprise yourself. Whenever you feel surprised with yourself, you've had a moment of self-awareness. बस उसको हम कलेक्ट नहीं करते. तो रात को दिन में एक आध दफा 5-7 मिनट खाली ऐसे बैठ के सोचे कि आज जो मैंने किया वो क्या किया, किस तरह बात की, किस तरह किया चाहिए. एंड अगर उसमें नई चीज मिले वो ये मैंने कैसे बोला, ये आइडिया आया कहाँ से मुझे. आपका सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस शुरू हो गया है. अच्छा उसने ऐसा किया, इसकी मुझे वजह क्या होगी. अगेन क्योंकि जब आप दूसरे का भी सोच रहे होते कई दफा यू आर रिफ्लेक्टिंग इट इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट. यू आर स्टिल डूइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन. तो ये जायजा लेना, तज्जिया करना, थोड़ा बहुत अपने आप को समझना, देखना कि मैंने ये किया था क्यों, क्या अचानक से मैंने अचानक ये कह दिया, क्यों कहा, कहाँ से आया, क्या ये सही था, क्या ये बेहतर हो सकता है. ये सवाल जो अपने आप से करते रहना काफी हेल्प करते हैं. अदरवाइज यू हैव क्वेश्चनर्स एंड असेसमेंट्स. दिस डज नॉट इंक्लूड फेसबैक और ओएमजी वाला जो होता है ना असेसमेंट. Okay, so final message for the audiences regarding improving their emotional well-being, their emotional intelligence part. Anything you would like to advise to the viewers? यार लेकिन एक चीज तो जरूरी है, मैं बताऊं, एवरीबडी नीड्स टू बी अवेयर ऑफ, सो गेट द लैंग्वेज राइट. कई दफा चीजें इतनी बुरी होती नहीं जैसा कि हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. मैं हमेशा, और ये काफी सालों से मेरी एक आदत रही है कि आई हैव बीन स्टडीइंग वर्ड्स, कि वर्ड्स का मतलब क्या है. जैसे वो वर्क वर्सेस परफॉर्म, वर्क इज अ नाउन, परफॉर्म इज अ वर्ब. तो वो इट्स लाइक इन्फ्लुएंस का भी जैसे, हाँ आपकी देखा था किसी और को सुबह को मेरी बात हुई, हु इन्फ्लुएंसेस वर्सेस व्हाट इन्फ्लुएंसेस. इस तरह के अल्फाजों के मायने, उसके स्ट्रक्चरिंग समझें. आई थिंक इट विल हेल्प इफ पीपल जस्ट रीड अप ऑन इमोशंस. डोंट टेक इट एज द फाइनल राइट आंसर. इसको मैं अक्सर अपने इमोशन इंटेलिजेंस प्रोग्राम में कहता हूँ, चेक इट आउट. I think check it out. Then check yourself out as well in the context of those languages. Make it continuous process. Keep improving on it day in, day out. इसमें mindfulness भी आता है, well-being भी आती है, आपके experiences भी आते हैं, आपके values भी आते हैं. Basically जितनी भी चीजें आपकी, जिसको हम लोग soft skills कहते हैं अमूमन, वो सारी चीजें के अंदर ये चीज आती है. Be open enough to learn. ये जो हम कहते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ के जो दिमाग अड़ जाता है ना, नहीं, वो गलत है. आई रियली लाइक, एक किताब में मैं पढ़ रहा था, समथिंग दैट यू, सो दोज ऑफ यू हैवंट मेट विद मी, या मेरे सेशन नहीं अटेंड किए तो दे फाइंड इट यूजफुल. मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, और सवाल ये था, between a fool and a wise man, and this is a question going out to everybody, when a fool and a wise man are in a conversation, who benefits the most, the fool या wise man? जल्दी से जवाब लिख दें अपना चैट पे. when a fool and a wise man in a conversation, who benefits the most? जवाब लिखे. देखिए लोगों ने जवाब क्या क्या दिया है. दानिश, आप fool and a wise man in a conversation, who benefits the most? जवाब नहीं दे रहे लोग. एक और दफा सवाल, a fool and a wise man in a conversation, who benefits the most? कंप्यूटर जी आपका टाइम शुरू होता है अब 10 सेकंड. एंड शिरीन ने अपना कैप ऑन करके, एंड शिरीन जीत गई ये जवाब. द जवाब इज द वाइज वन. साहिब, यू आर जस्ट बीइंग माय फ्रेंड राइट नाउ ओवर हियर, बट द आंसर इज यस. अरे एक ने कहा नोबडी. आई लाइक दैट, नोबडी. व्हेन अ फूल एंड अ वाइज मैन इन कन्वर्सेशन, इट इज द वाइज मैन हु बेनिफिट्स द मोस्ट. तो फूल तो फूल है ना, अड़ा हुआ नहीं, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो यही है, ये तो यही होता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो यही करूंगा. वो अपने आप को सरप्राइजिंग पे खोलता नहीं है. जो वाइज मैन है, आई एम नॉट यूजिंग नॉलेज, आई एम यूजिंग द वाइज मैन. परफेक्ट नौशीद. वाइज मैन क्योंकि वाइज मैन उसके सामने बैठ के ना वो ये सोच रहा, अच्छा ये ऐसे लोग भी होते हैं कि ये 7 मिलियन की पॉपुलेशन, एक और नमूना मुझे मिल गया. ठीक है, अच्छा वैसे लोग भी होते हैं, वैसे लोगों के साथ भी मुझे इस तरह की बातचीत करनी होगी. तो मैंने फूल एंड वाइज एंड कन्वर्सेशन, द वाइज मैन विल बेनिफिट. जो फूल जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, एंड नॉट अलाउइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू डिस्कवर व्हाट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर. सो मेक श्योर बी द वाइज मैन, डोंट बी द फूल. My final message. And I think this is the final words from Farhad from today's show. And I'm really glad that a lot of people remain interactive throughout the session. And Farhad से जब मैंने ये session की details share की थी, तो he shared it actually on the LinkedIn, and he quoted that I'll be giving some unconventional thoughts on this topic, not the run of the mill. And that's his way of doing things, and that's how we know Farhad
quite a long time. So अच्छा, I hope I lived up to my expectations. ये कल मैंने बड़ा claim डाल दिया था वैसे. maybe मैंने you, कहा you कि have कर देता हूँ. you always try to meet up with your expectation, and a lot of people have been following you because of this USP that you possess. So I hope that those of you who have found these thoughts unconventional, insightful, and beneficial for yourselves, please share this video to a lot of people who are not actually watching right now, because I know there are a lot of content going on these days on the social media. So it's important for all of us to just share these kind of videos, these insightful talks with the people that you know, and you think that they can benefit from these sessions as well. Keep tagging them up, sharing these sessions with all of them. Thank you so much once again, all of you, for joining this session. Thank you, Farad. It was a pleasure having you in this segment. To kickstart the segment actually with you. And I hope that you will continue giving me time for further sessions as and when required, provided that that this online intervention should continue going on after the COVID as well. Because I know that you travel a lot, so as soon as the situation becomes normal, you might go and visit Sri Lanka and UAE where you have other businesses. So आए आपके मुंह में घी शक्कर. मैं एयरपोर्ट लाउंज पे बैठ के बात करूंगा. मैं कोई जब पुणे में जाके अपने एयरपोर्ट पे बैठ के भी बात करूंगा. I have learned how to not be socially distant. all right, thank you, Ji. Thank you so much. Thank you. Take care of yourself. Stay home as much as you can and follow all the precautionary measures prescribed by the medical experts. Thank you once again. Take care. Bye.